محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں روشن ٹی وی. روشن ٹی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے. خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے. بلا شبہ تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جن کے تم میں سے اخلاق اچھے ہیں. آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر. ریاستی وزیر صحت ایٹیلا راجندر کی بے مثال خدمات. بودھن رکن اسمبلی شکیل عامر. انہوں نے نظام آباد کے دورے میں ان سے ملاقات کرتے ہوئے بودھن سرکاری دواخانے میں سہولیات کے لیے کیا مطالبہ. کورونا کا اثر ہوا پرجاوانی پر. سالوں پرانی روایت ہوئی تبدیل. فون کے ذریعے ہوا پرجاوانی کا انعقاد. دانشور طبقے نے اٹھایا فائدہ. بھارت رتن و ہندوستان کے 11ویں صدر جمہوریہ APJ عبدالکلام کی برسی کے موقع پر نہ مرکز میں نہ ہی ریاست میں کسی طرح کی تقریب کا انعقاد. افسوس. اس سال SP کی سطح میں دن بہ دن اضافہ. ضلع کے کسانوں میں خوشی کی لہر. کورونا کا قہر جاری. متحدہ ضلع میں مریضوں کی تعداد 700 سے ہوئی متجاوز. ریاستی سطح پر 11 اہم عہدیداروں کے تبادلے. نظام آباد و بودھن RDO بھی ہوئے تبدیل. اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب. ہندوستان کی میزائل مین ہندوستان کے 11ویں یوم جمہوریہ و بھارت رتن APJ عبدالکلام کی برسی کے موقع پر روشن ٹی وی کی جانب سے خصوصی پیشکش. آج کے دن ہندوستان نے اپنے بھارت رتن حاصل کرنے والے سائنسدان کو کھو دیا تھا جنہوں نے ٹیپو سلطان کی تیار کردہ میزائل کو نئی اونچائیوں تک پہنچایا جس کو دنیا آج بھی میزائل مین کہہ کر ہی یاد کرتی ہے. دنیا کی چونکانے والی ذہنیت لیکن ہر وقت سب سے سادگی سے ملاقات کرتے ہندوستان میں پیدا ہوئے, ہندوستان میں تعلیم حاصل کی اور اپنی تعلیم کو ہندوستان کے لیے ہی صرف کرنے والے سائنسدان APJ عبدالکلام جو ہندوستان کے 11ویں صدر جمہوریہ کی حیثیت سے کام کرتے ہوئے پورے ملک ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کا دل جیتا. اور آج ہی کے دن انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ میں ایک تقریر کے دوران ہی حرکت قلب رکنے کے سبب ان کا انتقال ہو گیا جس کے بعد پوری دنیا ایک غم کی لہر میں ڈوب گئی. لیکن آج ان کی برسی کے موقع پر ضلع میں کسی قسم کی تقریب نہ تو حکومت کی جانب سے نہ ہی کسی سماجی و فلاحی تنظیم کی جانب سے انعقاد کا نہ ہونا کافی افسوس کی بات ہے. شہر نظام آباد کلکٹر نارائن ریڈی نے کورونا وبا کے قہر میں بتدریج اضافہ ہونے پر کلکٹر چیمبر میں ہر پیر کو فون پروگرام عمل میں لاتے ہوئے عوامی مسائل کو حاصل کرتے ہوئے حل کرنے کا دیا تیقن. شہر نظام آباد کلکٹر نارائن ریڈی نے کورونا وبا کے قہر میں بتدریج اضافہ ہونے پر کلکٹر چیمبر میں فون پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے تمام افراد اپنے گھر سے فون نمبر 08462220183 پر فون کر کے اپنی درخواست صبح 10:30 سے دوپہر 2 بجے تک داخل کروانے کے لیے انتظامات کیے جانے کا انکشاف کیا گیا. اس سہولیات سے تمام افراد استفادہ کرتے ہوئے کوئی بھی گھر کے باہر نہ آئے اور ماسک کو لازمی طور پر پہنتے ہوئے روزانہ ہاتھوں کو سینیٹائزر سے دھوتے ہوئے سماجی فاصلے پر عمل کرنے کی ہدایت کی. سیکریٹریٹ کے انہدام کے دوران مساجد کی بے حرمتی کو برداشت نہیں کیا جائے گا. حکومت مساجد کو جلد از جلد اس مقام پر تعمیر کرے. مساجد میں رکھی دینی کتابوں و سامان کو ذمہ دار افراد کے حوالے کرے. کانگریس ضلع اقلیتی سیل صدر عبدالکریم ببو کا مطالبہ. ریاستی کانگریس اقلیتی سیل صدر شیخ عبدالسہیل کی ہدایت پر آج ضلع کانگریس اقلیتی سیل صدر عبدالکریم ببو کی قیادت میں شہر کی مرکزی مسجد جامع مسجد کے احاطے میں سیاہ رومال کے ساتھ تلنگانہ سیکریٹریٹ کے انہدام کے دوران شہید ہوئے مساجد کی بازیابی کے لیے دعائیں کی اور حکومت کی تانا شاہی کے خلاف احتجاج کیا اور کہا کہ مسجد کے انہدام سے قبل اس میں موجود قرآن شریف اور دیگر دینی اشیاء کو یہاں سے منتقل کرنے تک کا وقت نہ دیں نہ دیا.
फिर किसी जिम्मेदार के हवाले भी ना करना ये काफी गमजदा करने वाला अमल है। और इतने एहतजाज के बावजूद भी सेक्रेटेरिएट की इमारत के नए मॉडल में मस्जिद के मुकाम को नहीं बनाया गया। वाज़ेह है कि कानून शरिया के मुताबिक जहां पर एक बार मस्जिद की तामीर की जाती है वो जमीन ता क़यामत तक के लिए मस्जिद के लिए वक्फ हो जाती है। ऐसे में हुकूमत की जानिब से जब तक वाज़ेह बयान न आने तक हमारा एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया। इसके बाद इन्होंने वन टाउन पुलिस स्टेशन में सेक्रेटेरिएट के इंतजाम करने वाले जिम्मेदार अफराद के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। इस मौके पर कांग्रेस नायब अक़लियती सेल सदर अब्दुल इजाज़ इलियास व दीगर मौजूद थे। आज यहाँ पर जामा मस्जिद में हमारे साथियाँ कांग्रेस पार्टी के लोग जमा हुए। आली जनाब शेख अब्दुल्ला सुहेल साहब की फरमान के ऊपर उनका वो हमारे को इस ताल्लुक़ से भी जाए कि सेक्रेटेरिएट में दो मस्जिदों को शहीद करे। उस ताल्लुक़ से शहीद करने से पहले कोई ज़िम्मेदार लोगों को बुला के बता के भाई हम शहीद करें, ये यहाँ पर जानी माज़ा, यहाँ पर कुरान शरीफ, यहाँ के तस्बीह जो दीनी चीज़ें रखे हुए हैं वो किसी के कोई ज़िम्मेदार आदमी के सामने जो है हवाला करते हुए जो है ना वो नहीं करे और जो है शहीद कर दिए। शहीद करने के बाद सेक्रेटेरिएट का नक्शा पेश कर रहे। उस सेक्रेटेरिएट के नक्शे के अंदर मस्जिदों का अमल दखल कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। मस्जिदों का हमारे को क्लैरिफिकेशन चाहिए कि एक मस्जिद बना रहे और ऊपर दो मस्जिद बना रहे। हिंदुस्तान में या कहीं भी जो है इस्लाम में शरई तरीक़े से जो है मस्जिद को शहीद करने का कहीं भी हुक्म नहीं है और शहीद करके अपनी मनमर्जी से कहीं भी वहाँ जगह बता देते हम वो कर देते। इस चीज़ को जो है ये करना सरासर जो है कि तेलंगाना की हुकूमत केसीआर साहब का बहुत मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही। हमारी हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि आने वाले कल में ऐसी चीज़ें फिर से नहीं करे और जो चीज़ करे उसको जो है हमारे को क्लैरिफिकेशन चाहिए कि हमारे को वहाँ पर कितने मस्जिद बन रहे और दो मस्जिद बन रहे, दो मस्जिद बराबर होना। और जिस तरीके से जो है वहाँ पर जब मंदिर हटा रहे तो 9 दिन की पूजा करे, 10 दिन की पूजा करके वो लोग हटाए। हमारे मस्जिद के कोई ज़िम्मेदार लोगों को किसी को भी अहमियत नहीं देके जिस तरीके से काम हो रहा तो चीज़ को जो है हम नज़रअंदाज नहीं करेंगे। ये कहते हुए मैं आप लोग हमारी आवाम से भी एक अपील है कि आज केसीआर साहब की जो टीआरएस हुकूमत तो मुसलमानों के साथ जिस अंदाज में पेश आ रहे वो चीज़ों को जो है आप गौर फिक्र कर हमारे साथ प्रोटेस्ट करिए, क्योंकि आने वाले कल में आज ये चीज़ जो शुरू हो गई और हर एक के साथ जो हर दूसरे हर मामला में जो है मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी होने का मामला शुरू हो गए। ये मैं आप लोगों से कहते हुए इजाज़त देता हूँ। खुदा हाफ़िज़, जय हिंद। अवाम की बेएहतियाती व हुकूमत की गलत हिकमत अमली नतीजा जिले में कोरोना वबा के खौफनाक असरात। एक ही दिन में 41 अफराद हुए कोरोना से मुतासिर। हर रोज जिले निजामाबाद में कोरोना मरीजों की तादाद में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। आज निजामाबाद में 41 अफराद कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसी तरह शहर निजामाबाद में इस वबा से तकरीबन 700 अफराद इस वायरस से मुतासिर होने का इम्कान है, जिसकी वजह से अवाम में बरहमी पाई जा रही है। कई अफराद इस वायरस का शिकार होते हुए इसको मौसमी अमराज बीमारी समझकर इस वायरस को फैलने में मदद कर रहे हैं, जबकि कोरोना वायरस का जितना जल्दी इलाज शुरू किया जाए इतना जल्दी मरीज सेहतमंद हो सकता है। ताख़ैर करने पर जान जा सकती है। अब भी कोरोना वायरस की वबा में अवाम को हर तरह की सहूलतें और इलाज करने तैयार है। अवाम अपनी जिम्मेदारी समझकर अलामतें जाहिर होने पर फौरी दवाखाने रुजू हो। अवाम की मदद के लिए हर वक्त हाजिर बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर देर रात एक मरीज की जानिब से मदद की गुहार पर इन्हें फराहम की ऑक्सीजन किट। बोधन रुकन असम्बली मोहम्मद शकील आमिर ने शहर निजामाबाद के हॉस्पिटल को शदीद ज़रूरत के बाइस कल देर रात एक मरीज को ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए फ़ोन करने पर इन्होंने फौरी दिलचस्पी लेते हुए ऑक्सीजन सिलेंडर किट को देर रात सरकारी हॉस्पिटल निजामाबाद को फराहम किया। ज़िले निजामाबाद कोंडूर मंडल की मेकला रुजा 28 साल खातून ने बुखार को मौसमी अमराज समझकर नज़रअंदाज करने के बाइस कोरोना वबा का शिकार होकर हुई फौत। ज़िले निजामाबाद कोंडूर मंडल के
मिकाला रुजा 28 साला खातून गुज़िश्ता चंद यौम से बुखार में मुब्तला रहते हुए मौसमी अमराज समझकर तिब्बी इमदाद न लेने के बायस कोरोना वबा के सिम्टम पे इजाफा होने से निजामाबाद के खानगी हॉस्पिटल में शरीक करने पर जेर इलाज तिब्बी इमदाद हासिल करते हुए सुबह के अव्वलिन सातों में फौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक मुकामी लोगों की जानिब से सीटी स्कैन करने पर फौतशुदा खातून को कोरोना वबा से मुतासिर होने की इत्तला पाकर मंडल के अवाम में डरो खौफ तारी हो गया, जिसकी वजह से महकमे पुलिस की जानिब से नाश को फौरी एम्बुलेंस के जरिए शमशान घाट ले जाकर आखिरी रस्मात अदा की गई। इसके बाद फौतशुदा खातून के प्राइमरी कांटेक्ट में मिले हुए अफराद के बारे में ANM मेंबर ने तफसीलात इकट्ठा करना शुरू कर दिया। फौतशुदा खातून बीड़ी वर्कर और रोजगार तमानियत स्कीम के तहत मजदूरी करने की इत्तला है। इनके शौहर मिकाला समन ऑटो चलाते हुए जिंदगी गुजार रहे हैं। इनको 2 बच्चे हैं। इनके अफराद खानदान को होम क्वारंटाइन किए जाने की इत्तला दी गई। रियासत में कोरोना वबा की खौफनाक लहर में भी रियासती वजीर सेहत की खिदमत बेमिसाल। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर, इन्होंने बोधन सरकारी हॉस्पिटल में सहूलियात की फराहमी के लिए इनसे मुलाकात करते हुए किया मुतालबा। शहर निजामाबाद के प्रगति भवन में आज मुनक़िद करदा इजलास में रियासती वजीर सेहत ईटिला राजेंद्र, रियासती वजीर इमारत और शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी, बोधन रुकन असम्बली मोहम्मद शकील आमिर ने शिरकत। इसको मद्देनजर रखते हुए बोधन रुकन असम्बली मोहम्मद शकील आमिर ने कहा कि रियासती वजीर सेहत ईटिला राजेंद्र ने गुजरते हुए 4 माह से अब तक कोरोना वबा के कहर के बारे में अहम तरीन फैसले लेते हुए खिदमत अंजाम दे रहे। इन्होंने कहा कि रियासती वजीर सेहत को कोरोना वबा से किस तरह से मुकाबला किया जाए, इस बारे में इनको वसी तरीन मालूमात है, जिसकी वजह से अवाम इनकी शुक्रगुजार है। वो हमेशा अवाम की सेहत के ताल्लुक से काफी फिक्रमंद रहते हैं। संजीदा हालात में मदद करने के लिए दरख्वास्त करने पर फौरी दिलचस्पी लेते हुए तमाम आलात फ्राहम करें। कहते हुए कहा कि जिले बोधन के गवर्नमेंट हॉस्पिटल को जरूरी आलात जैसे वेंटिलेटर, लैब और मखलूआत जायदादों पर जल्द तकर्रुरात करने के लिए ड्रामेटिक एस्टिमेशन भी रियासती वजीर को दिए जाने का इशारा किया। और इन्होंने कहा कि ICU का क़याम अमल में लाते हुए कोरोना वबा की मरीजों को तशफ़ी बख्श इलाज के लिए 4 से 5 महीने के लिए नर्सों और लैब टेक्नीशियन आउटसोर्सिंग के तहत तकर्रुर करने के लिए रियासती वजीर सेहत ईटिला राजेंद्र को ख्वाहिश की गई। और कोरोना कोविड-19 के तदारुक के लिए एक तरफ रियासती वजीर इमारत और शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी, कलेक्टर और जिले इंतजामिया, जिले के तमाम रुकन असम्बली ने मिलकर कोरोना वबा को शिकस्त देने के लिए अहम तरीन किरदार अदा किया। इन्होंने कहा कि जिले में तमाम महकमों से ताल्लुक रखने वाले ओहदेदारान ने कोरोना वबा के कहर में भी अहम तरीन खिदमत अंजाम देने का इंकशाफ किया। शहर निजामाबाद के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोरोना वबा से ताल्लुक रखने वाले CB नॉट टू नॉट टेस्ट बोधन के हॉस्पिटल में इनेकात अमल में लाने का मुतालबा करते हुए कोरोना वबा से ताल्लुक रखने वाले टेस्ट बोधन शहर में कोरोना वबा जंग के खिलाफ 20 यौम से कोरोना मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड और ऑक्सीजन की सहूलियात फराहम करते हुए बोधन हॉस्पिटल में कोरोना वबा से मुतासिरा मरीजों की आमद पर तशफ़ी बख्श इलाज फराहम करने के लिए कार्रवाई किए जाने का इंकशाफ किया गया। अवाम की खिदमत के लिए हर वक्त हाजिर, अवाम के मसाइल का हल फिलफुर करने वाले बोधन म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन मोहम्मद एहतेशाम सोहेल, इन्होंने अवाम की शिकायत पर किया वार्ड नंबर 34 में जंगी खतूत पर सफाई काम अंजाम। बोधन शहर के म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन मोहम्मद एहतेशाम सोहेल ने वार्ड नंबर 34 में मुक़ीम अवाम की जानिब से बरसात के पेश नज़र जहरीली जानवरों की आमद पर दरख्वास्त पेश करने पर म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ने फौरी दिलचस्पी लेते हुए वार्ड नंबर 34 में JCB के जरिए जंगली झाड़ियों व पौधों को साफ कराया। इस मौके पर वार्ड नंबर 34 इंचार्ज अब्दुल रहीम व दीगर ने शिरकत। प्रतिमा राजपूत नए सुपरिंटेंडेंट जिले सरकारी हॉस्पिटल मुंतखब होने पर रियासती वजीर सेहत ईटिला राजेंद्र, रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने दी मुबारकबाद। शहर निजामाबाद में वजीर सेहत ईटिला राजेंद्र की आमद पर जिले हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट प्रतिमा राजपूत ने अदब व एहतराम से मिलते हुए एक पौधा पेश किया। हाल ही में नए जिले सुपरिंटेंडेंट का ओहदे पर फायज होने वाली प्रतिमा राजपूत को रियासती वजीर सेहत ईटिला राजेंद्र और रियासती वजीर इमारत और शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी ने मुबारकबाद दी। इस मौके पर इन्होंने कहा कि हॉस्पिटल को आने वाले मरीजों का तशफ़ी बख्श इलाज करते हुए तमाम तिब्बी अमले के साथ मिलकर खिदमत अंजाम देने की हिदायत दी। इस प्रोग्राम में मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल इंदिरा व दीगर ने शिरकत की।
जिले महबूब नगर डोनाकल मंडल मौजे जोगिया तांडे में एमपीडीओ वेंकटेश वालू ने बरोज़े पीर को देहात की तरक्की के तहत जारी कामों का जायजा लेते हुए 25 किस्म के 4000 पौधे लगाए। जिले महबूब नगर डोरेंकल मंडल मॉल से जोगिया तांडा में एमपीडीओ वेंकटेश वालू ने बरोज़े पीर को देहात की तरक्की के तहत 30 मंडल 20 मौजूआत में जारी कामों का जायजा लेते हुए 25 किस्म के 4000 पौधे लगाए। इसको मद्देनजर रखते हुए सरपंच ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से फराहम करदा देहात की तरक्की के तहत जारी कामों में मनसूबा बंदी व दिलचस्पी के जरिए तरक्याती काम अमल में लाते हुए डंपिंग यार्ड, कब्रिस्तान के हिसारबंदी जैसे कामों को मुकम्मल किए जाने का इजहार किया। 22 किस्म के पौधे लगाए। सुबह वॉकिंग करने वाले अफराद को मद्देनजर रखते हुए जारी तरक्की याफ्ता कामों में तेजी अमल में लाई जा रही है और इतराफ के जंगली पौधों को निकालते हुए मच्छरों की अफजाइश को रोकने के लिए केनाल में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किए जाने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में एमपीओ सेक्रेटरी नागया, नायब सरपंच, वार्ड मेंबर रजिता, रमेश, रवि व दीगर ने शिरकत की। कोऑप्शन मेंबर बल्दिये बोधन के लिए मजलिसी उम्मीदवार का इंतखाब यकीनी। म्यूनिसिपल काउंसिल बोधन कोऑप्शन मेंबर के लिए सदर मजलिस अडाक कमेटी बोधन टाउन शेख मुशीर का इंतखाब यकीनी हो गया है। रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर ने भी मजलिस उम्मीदवार शेख मुशीर की तायद का प्रेस नोट जारी करते हुए ऐलान किया है। रुकन असम्बली बोधन ने म्यूनिसिपल काउंसिल बोधन के लिए 4 कोऑप्शन मेंबर्स निशिस्तों पर जनरल जिम्रे से आरसितिया नारायणा रजिया बेगम और अखिलती जिम्रे से वसीम सुल्ताना अहलिया मीर इलियास अली शेख मुशीर को मुंतखब करने व दीगर उम्मीदवारों को अपने पर्चे नामजदगियां वापस लेने की हिदायत दी है। म्यूनिसिपल काउंसिल बोधन कोऑप्शन मेंबर की 4 निशिस्तों पर 16 उम्मीदवारों ने पर्चा नामजदगियां दाखिल की है। बल्दिये बोधन में 138 अराकीन बल्दिया है, टीआरएस के 24 और मजलिस पार्टी के 11 अराकीन हैं। रुकन असम्बली बोधन की मजलिस पार्टी उम्मीदवार कोऑप्शन मेंबर के लिए तायद के ऐलान पर बोधन की मजलिसी कारकुनों और मोहबान मजलिस में मसरत का इजहार किया जा रहा है। तेलंगाना में माह जुलाई तक मामूल से 30% इजाफी बारिश। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में भी मामूल से ज्यादा बारिश। मानसून सरगर्म। जुनूब मगरिबी मानसून के सरगर्म रहने के नतीजे में ग्रेटर हैदराबाद इलाके में माह जुलाई में मामूल से ज्यादा बारिश हुई है, जबकि जुलाई का महीना खत्म नहीं हुआ है। जुलाई को मानसून के उरूज का महीना समझा जाता है और इसमें वक्फे से अच्छी बारिश हुई है। महकमे मौसमियात के बमौजिब माह अगस्त और सितंबर में भी बारिश होगी और ये बारिश मानसून खत्म होने तक मामूल से ज्यादा ही रहेगी। गुज़िश्ता साल जुलाई में मौसम खुश्क था और कम बारिश हुई थी। इस साल ताहम मानसून रियासत में सरगर्म है और दारुल हुकूमत में भी इजाफी बारिश रिकॉर्ड की गई। तेलंगाना प्लानिंग डेवलपमेंट सोसाइटी के बमौजिब ग्रेटर हैदराबाद में 21 जून से 23 जुलाई के दरमियान 224.6 मिलीमीटर बारिश मामूल की बारिश है। ताहम इस बार इस वक्फे के दौरान 318.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। रंगारेड्डी में 203.5 मिलीमीटर बारिश मामूल के मुताबिक है, जबकि 285.5 मिलीमीटर बारिश हुई जो मामूल से ज्यादा है। इसी तरह मेरचल मलकाजगिरी में भी 272.0 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि 239.6 मिलीमीटर बारिश मामूल के मुताबिक है। इसके अलावा तेलंगाना में मामूल से 30% इजाफी बारिश रिकॉर्ड की गई है। आदादोशुमार के बमौजिब 33 अजला में सिर्फ निर्मल और निजामाबाद ऐसे हैं जहां मामूल से कम बारिश हुई, जबकि दूसरे तमाम अजला में अच्छी बारिश हुई और मामूल से ज्यादा रिकॉर्ड की गई है। कहा गया है कि ग्रेटर हैदराबाद हुदूद में माह जुलाई के खत्म से कबल जो बारिश हुई वो मामूल से 50% ज्यादा करार दी जा रही है। ग्रेटर हैदराबाद हुदूद में जुमला 47 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि सालाना 82 सेंटीमीटर बारिश मामूल के मुताबिक है। मेदक में सबसे ज्यादा 69 सेंटीमीटर बारिश हुई, जिसके बाद भद्राचला में जहां 63 सेंटीमीटर और महबूबाबाद में 62 सेंटीमीटर बारिश हुई। हकीम पेट में सबसे कम 21 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। रियासत में जुमला 12 मौसमी स्टेशन है जहां यौमिया बारिश रिकॉर्ड की जाती है। इस मरतबा खुतबा हज उर्दू समेत 10 जुबानों में नशर।
सऊदी हुकूमत ने इस मरतबा खुतबा हज का उर्दू समेत 10 जबानों में तर्जुमा नश्र करने का फैसला किया है। अल हरमैन अल शरीफैन के उमूर के जिम्मेदार प्रेसिडेंसी के सरबराह अल शेख अब्दुल रहमान अल सदीस ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि इस्लाम का पैगाम पूरी दुनिया में मौजूद मुसलमानों तक पहुँचाने के लिए खुतबा हज 10 आलमी जबानों में नशर होगा। अल शेख अब्दुल रहमान ने बताया कि अमसाल उर्दू, अंग्रेजी, फारसी, बंगला, तुर्की, फ्रांसी, चीनी, रूसी, हाउसा और माले जबान में खुतबा हज नशर होगा। गुज़िश्ता साल खुतबा हज का तर्जुमा 5 जबानों में नशर हुआ था। सऊदी अरब ने जून में इस साल कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र महदूद पैमाने पर हज का ऐलान किया था। सऊदी हक्काम के मुताबिक इस मरतबा सिर्फ 10,000 आज़मीन अकराम हज बैतुल्लाह की सादत हासिल कर रहे हैं। इनका इंतखाब खुद कार तरीके से किया गया है। इनमें सऊदी अरब में मुक़ीम गैर मुल्की तारिकीन वतन की तादाद 70% है और 30% सऊदी शहरी है। इन मुंतखब आज़मीन के पहले ग्रुप को हफ्ते के रोज मक्का मुकर्रमा पहुंचा दिया गया है। हैदराबाद के बाद निजामाबाद में प्लाज्मा थेरेपी का आगाज, मरकजी इदारे से इजाज़त तलब, केस में इजाफे पर जिले हुक्काम का फैसला। प्लाज्मा थेरेपी के जरिए कोरोना के मरीजों के इलाज का तजुर्बा हैदराबाद के बाद सरकारी हॉस्पिटल्स में शुरू किया गया है। ताहम जिले निजामाबाद रियासत का वो वाहिद जिला बन गया जहां प्लाज्मा इलाज का आगाज किया गया है। कोरोना से सेहतयाब अफराद का प्लाज्मा हासिल करते हुए उसे कोरोना के मरीजों में मुंतकिल करने से आजिराना सेहतयाबी के इम्कानात जायद पाए गए हैं। निजामाबाद जिले के हक्काम ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को मकतूब रवाना करते हुए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में प्लाज्मा डोनेशन हासिल करने की इजाजत तलब की है और इदारों ने बताया कि वो कोरोना से सेहतयाब होने वाले अफराद की मुकम्मल तफसीलात जमा कर चुके हैं। इनमें से कई अफराद ने प्लाज्मा का अतिया देने का इरादा जाहिर किया है। निजामाबाद का शुमार उन अजला में होता है जहां कोरोना के केसेस में काफी इजाफा देखा गया। इब्तदाई मरहले में निजामाबाद बुरी तरह मुतासिर हुआ, ताहम दरमियान में वो कोरोना से पाक करार दिया गया था। अनलॉक 2 के आगाज के बाद दीगर अजला के अलावा निजामाबाद में भी कोरोना के केसेस में तेजी से इजाफा हुआ। जिले हक्काम ने सूरत हाल पर काबू पाने के लिए प्लाज्मा थेरेपी के आगाज का फैसला किया। जिले में टेस्टों की तादाद में इजाफे के लिए हुकूमत की जानिब से 3,000 किट्स रवाना किए गए हैं। कोरोना के मरीजों का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में इलाज किया जा रहा है और ऑक्सीजन के साथ आईसीयू बिस्तरों की तादाद में 40 से 250 तक इजाफा किया गया, जबकि वेंटिलेटर्स के साथ बिस्तरों की तादाद 25 से बढ़ाकर 70 की गई है। अगर इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च प्लाज्मा थेरेपी की इजाजत देती है तो निजामाबाद न सिर्फ इलाज के एतबार से पहला जिला बन जाएगा बल्कि मरीजों के सेहतयाब होने की शरह में इजाफा हो सकता है। रियासत के 16 इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बंद होने का इम्कान, 3,800 नशिस्तें खत्म हो सकती है, मौजूदा हालात और कम आमदनी अहम वजह। तालीमी साल 2020-21 में 3,800 इंजीनियरिंग की नशिस्तें खत्म हो जाने का इम्कान है, क्योंकि 16 कॉलेजेस ने आर्जी तौर पर या मुकम्मल तौर पर कॉलेज बंद करने के लिए जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हैदराबाद में दरख्वास्त दाखिल की है। ओहदेदारों ने बताया कि कॉलेज बंद करने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए जिन कॉलेजों ने दरख्वास्त दाखिल की है वो अजला में है। इनमें बेशतर कॉलेजेस अजला में दूर दराज कायम है और गुज़िश्ता चंद बरसों से इनमें इंतहाई कम दाखिले हुए हैं। JNTUH के रजिस्ट्रार मंजूर हुसैन ने बताया कि बेशतर कॉलेजेस 90 की दिहाई के इब्तिदा में कायम किए गए थे और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरक्की व उरूज के दरमियान जबरदस्त आमदनी हासिल की थी। बाज़ इंतजामिया का कहना है कि इन अजला में कॉलेजेस के क़याम और चलाने से इनको आमदनी नहीं हो रही है। गुज़िश्ता चंद बरसों से फीस रीइंबर्समेंट के बकायाजात की अदायगी में हुकूमत की जानिब से ताख़ीर से हालात और भी खराब हो गए हैं। एक कॉलेज इंतजामिया के करस्पॉन्डेंट ने बताया कि गुज़िश्ता कई बरसों से कॉलेज को आमदनी नहीं हो रही है, क्योंकि कॉलेज में दाखिलों की तादाद 100 से कम होती है। लिहाजा कॉलेज की इमारत हुकूमत को किराए पर देने या किसी स्कूल के लिए लीज पर देने से माहाना माकूल आमदनी हो रही है। किसी तरह दूसरे कॉलेजेस अपनी इमारत को हॉस्टल या पेंडिंग गेस्ट की सहूलियात में तब्दील करने के इम्कानात पर गौर कर रहे हैं। बाज़ ने कोविड-19 वबा के पेश नजर अपनी प्रॉपर्टी फरोख्त कर दी है। JNTU की जानिब से इस साल
फिजिकल मुआयना भी नहीं किया जा रहा है और मशरूत अलहक जारी किया जाएगा। मंजूर हुसैन ने बताया कि सूरत हाल साजगार होने पर फिजिकल मुआयने किए जाएगा और अब नए तालीमी साल के आगाज से कबल मशरूत अलहक जारी किया जाएगा। अनलॉक 3 के रहनुमाना खतूत ज़ेरे गौर, सिनेमा हॉल्स और जिम की कुशादगी मुतवक्के, स्कूल्स और मेट्रो हुनूस बंद रहेंगी। मुल्क में अनलॉक 2 जुलाई की 31 की तारीख को ख़त्म होगा। वज़ारत दाखिली उमूर अनलॉक 3 के लिए रहनुमाना खतूत पर गौर कर रही है और तौक़े है कि 1 अगस्त से कबल ताज़ा रहनुमाना खतूत जारी कर दिए जाएंगे। तौक़े है कि अनलॉक के अगले मरहले में समाजी फासले के प्रोटोकॉल पर सख्ती से अमलावरी के साथ सिनेमा हॉल, थिएटर्स और जिम्स की कुशादगी की इजाज़त दी जाएगी, जबकि मेट्रो सर्विस और स्कूलों के हुनूस बंद रहने का इम्कान है। वज़ारत दाखिली उमूर की जानिब से नए रहनुमाना खतूत जारी करने के बाद तमाम रियासती हुकूमतें अपने मुतालिका रहनुमाना खतूत पर अमल करेगी, जिसके तहत काम काज की इजाज़त देने या ना देने से मुतालिक फैसला किया जाएगा। वज़ारत फ़रोग़ इंसानी वसाइल, स्कूलों और कॉलेजेस की दोबारा कुशादगी से मुतालिक रियासती हुकूमतों से मुशावरत में मसरूफ़ है। क़ब्ल अज़ीज़ वज़ारत ने बताया कि वो इस सिलसिले में सरपरस्तों से भी इनकी राय और तजावीज़ तलब कर रहे हैं। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक सरपरस्त भी मौजूदा हालात में स्कूलों को दोबारा खोलने के हक़ में नहीं है। वज़ारत इत्तलात व नशरियात के मुताबिक वज़ारत दाखिली उमूर को इसने मुल्क भर में सिनेमा हॉल्स की दोबारा कुशादगी की सिफारिश की है। थिएटर्स के मालिकीन की जानिब से 50% नशिस्तों की गुंजाइश के साथ सिनेमा हॉल्स को दोबारा खोलने के लिए मुसलसल मुतालबा किया जा रहा है। कॉर्पोरेशन मेंबर आर्मर इंतखाबात का मरहला जारी, जुमला 32 दरख्वास्तें वसूल, जिनमें से 7 दरख्वास्तें स्क्रूटनी में हुई खारिज। 8 अगस्त में इंतखाबात अमल में लाए जाएंगे। आर्मर बल्दिया म्यूनसिपल कमिश्नर शैलेजा। आर्मू बल्दी के लिए माविन रुकन कॉर्पोरेशन मेंबर के लिए जुमला 32 पर्चा नामजदगियाँ दाखिल की गई, जिसकी आज 27 जुलाई को तनखी अंजाम दी गई। म्यूनसिपल कमिश्नर आर्मू शैलेजा ने सहाफ़ियों को बताया कि जुमला 7 दरख्वास्तें खारिज कर दी गई हैं, जिसमें एक दरख्वास्त गुजार पर प्रपोजल की निशानदही नहीं की और दीगर 6 दरख्वास्तें डबल आने की वजह से खारिज कर दिया गया। इसी तरह जुमला 7 दरख्वास्तें नॉमिनेशन खारिज कर दिए गए हैं। आगे बताते हुए कहा कि सदरनशीन बल्दिया पंडित विनीता पवन के मशवरे पर अंदरून 8 अगस्त काउंसिल का एक स्पेशल इजलास रखा जाएगा, जिसमें माविन रुकन बल्दिया कॉर्पोरेशन मेंबरान का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। इस इंतखाब में माइनॉरिटी के 14 उम्मीदवार और जनरल जिमरे में 11 उम्मीदवारों का फैसला होगा। वाज़ेह रहे कि आर्मूर म्यूनसिपल के लिए 4 माविन रुकन बल्दिया कॉर्पोरेशन मेंबर की किस्मत का फैसला होगा। ఈరోజు ఆర్మూర్ పురపాలక సంఘంలో కోఆప్షన్ సభ్యుల ఎన్నిక సంబంధించిన స్క్రూటినీ పూర్తి చేయడం జరిగింది. మనకు ఇది వరకు 24వ తేదీలో వరకు ఇప్పుడు 32 దరఖాస్తులు జనరల్ కేటగిరీలో మరియు మైనారిటీ కేటగిరీలో దరఖాస్తులు రావడం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగా స్క్రూటినీలో ఈరోజు జనరల్ కేటగిరీలో 11 మంది అభ్యర్థులు స్క్రూటినీలో క్వాలిఫై అయ్యారు. తర్వాత నిరాకరించబడినవి వచ్చేసి 3 దరఖాస్తులు నిరాకరించడం జరిగింది. తర్వాత మైనారిటీ అభ్యర్థుల విషయంలో మొత్తం 14 దరఖాస్తులు మనకి స్క్రూటినీలో క్వాలిఫైగా చేర్చడం జరిగింది. కాబట్టి ఈరోజు ఇప్పటి వరకు మనకు జనరల్ కేటగిరీలో 11 మంది అభ్యర్థులు మరియు మైనారిటీ కేటగిరీలో వచ్చేసి 14 మంది మధ్య అభ్యర్థులు మనకు క్వాలిఫై అయి ఉన్నారు. ఇటు విషయాన్ని గౌరవ చైర్పర్సన్ గారి దృష్టికి తీసుకొని వస్తూ కౌన్సిల్ యొక్క ప్రత్యేక సమావేశానికి SRSP की सतह में दिन ब दिन इजाफा। श्री राम सागर प्रोजेक्ट की सतह में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, जिसके बायस काकतिया केनाल, सरस्वती केनाल, अली सागर व दीगर केनाल के जरिए पानी को छोड़ा जा रहा है। श्री राम सागर प्रोजेक्ट की सतह 1091 फीट है। मौजूदा प्रोजेक्ट की सतह 10,074.40 फीट है। 24 घंटे के दौरान प्रोजेक्ट में 26,287 क्यूसेक पानी पहुंचने पर प्रोजेक्ट की सतह 10,074.40 होने पर 38,390 TMC पानी का जखीरा होने के बायस काकतिया केनाल के जरिए 5,000 क्यूसेक, सरस्वती केनाल के जरिए 563, लक्ष्मी केनाल के जरिए 360 क्यूसेक, अली सागर लिफ्ट इरिगेशन के जरिए 540, गुतपा लिफ्ट इरिगेशन के जरिए 270, मिशन भगीरथ स्कीम के तहत 152 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। रियासती सतह पर बेहतरीन तौर पर
तरक्याती इक़दामात अमल में लाते हुए कोरोना वबा के कहर को काबू में करने के लिए चंद एहतियाती इक़दामात के तौर पर ओहदेदारों का तबादला अमल में लाते हुए निज़ामाबाद आरडीओ की हैसियत से रवि का तकर्रुर किया गया और बोधन आरडीओ की हैसियत से राजेश्वर का तकर्रुर किया गया। इख्तिताम से कब नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। रियासती वजीर सेहत ईटिला राजेंद्र की बेमिसाल खिदमत, बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर। इन्होंने निज़ामाबाद के दौरे में इनसे मुलाकात करते हुए बोधन सरकारी दवाखाने में सहूलियात के लिए किया मुतालबा। कोरोना का असर हुआ प्रजावानी पर, सालों पुरानी रिवायत हुई तब्दील, फोन के जरिए हुआ प्रजावानी का इनेकाद, दानिशवर तबके ने उठाया फायदा। भारत रत्न व हिंदुस्तान के 11वें सदर जमहूरिया APJ अब्दुल कलाम की बरसी के मौके पर न मरकज में न ही रियासत में किसी तरह की तकरीब का इनेकाद, अफसोस। इस साल एसपी की सतह में दिन ब दिन इजाफा, जिले के किसानों में खुशी की लहर। कोरोना का कहर जारी, मुतहदा जिले में मरीजों की तादाद 700 से हुई मुतजाविज। रियासती सतह पर 11 अहम ओहदेदारों के तबादले, निज़ामाबाद व बोधन आरडीओ भी हुए तब्दील। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।